کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹیور جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں غیر موسمی بارش نے کسانوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ گزشتہ 2 دنوں سے ریاست کے کئی حصوں میں اچانک موسم تبدیل ہو گیا اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست بھر میں گرج چمک، بجلی اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ اوسطاً بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ ماہرین موسمیات نے خاص طور پر خبردار کیا کہ بعض مقامات پر ژالہ باری ہوگی، جس کے پیش نظر کسانوں اور عوام کو خاص طور پر محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں کی تفصیل بتاتے ہوئے حکام نے کہا کہ زون 1 میں شامل میدک، سدی پیٹ، کاماریڈی، وقار آباد، یدادری، بھونگیر، سنگاریڈی، نظام آباد، سرسلہ، جگتیال، منچریال اور کمرمبھیم آصف آباد اضلاع میں بارش کا امکان ہے، جبکہ زون 2 کے اضلاع بشمول رنگا ریڈی، نلگنڈا، محبوب نگر، سوریا پیٹ، کھمم، بھدرادری، کوتاگوڑم اور محبوب آباد میں بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ سنگاریڈی میدک ضلع سے تعلق رکھنے والے BRS کارکنوں کو مبینہ طور پر فرضی مقدمات میں گرفتار کیے جانے کے بعد سنگاریڈی جیل میں اہم پیش رفت دیکھنے میں آئی۔ سابق وزیر ٹی ہریش راؤ نے جیل پہنچ کر زیر حراست کارکنوں کی عیادت کی اور ان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سنگاریڈی کے مقامی MLA چنتا پربھاکر، ظہیر آباد کے MLA مانک راؤ اور سابق MLAs پدما دیویندر ریڈی اور ششی دھر ریڈی بھی موجود تھے۔ سابق وزیر نے جیل کے اندر کارکنوں کی صحت کی صورتحال اور ان پر درج مقدمات کی تفصیلات معلوم کی۔ انہوں نے گرفتار کارکنوں کو حوصلہ دیا اور یقین دہانی کرائی کہ پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بعد ازاں ٹی ہریش راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت کے رویے پر تنقید کی اور کہا کہ پارٹی کارکنوں کو نشانہ بنانا مناسب نہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انصاف کو یقینی بنایا جائے اور بے گناہوں کو فوری رہا کیا جائے۔ రాజ్యాంగం ఉందా? ఇప్పుడు ఈరోజు 3 ఎన్నికలు వాయిదా వేశారు. కేతన్పల్లి, ఇబ్రాహీంపట్నం, 3 ఎన్నికలు వాయిదా పడ్డాయి. ఎప్పుడు ఆ ఎన్నికలు జరుపుతారు? ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నారు? అంటే ఎన్నికల కమిషన్ మీ చేతిలో పెట్టుకొని ఎన్నికలు వాయిదా నిరవధికంగా వాయిదా వేస్తారు. మాకు కోరం ఉంది, ఎన్నిక నిర్వహించండి అంటే మీరే లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్ సృష్టిస్తారు. మీరే ఎన్నికలు నిర్వహించరు, ఎన్నికను వాయిదా వేసుకొని పారిపోతారు. ఇప్పుడు ఇవాళకి 4 రోజులు అయింది. ఎందుకు ఎలక్షన్ డేట్ ఇస్తలేరు? బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మెజార్టీ ఉంది, అక్కడ ఎన్నిక జరిగితే బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుస్తుంది, అందువల్ల ఎన్నిక పెట్టారా మీరు? सक्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में खास तौर पर लड़कियों की तालीम और एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। एडमिशंस अब शहर की मुख्तलिफ ब्रांचेस में ओपन है और साथ ही सिर्फ लड़कियों के लिए हमारा एक्सक्लूसिव स्कूल टोली चौकी और पुरानी हवेली में भी अवेलेबल है। पहले 100 तलबा को बिल्कुल फ्री एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। सीट्स लिमिटेड है, इसलिए देर ना करें और आज ही एडमिशन लीजिए। رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی حیدرآباد بالخصوص پرانے شہر میں ایک نئی رونق دیکھنے کو مل رہی ہے۔ رمضان کی اصل پہچان کہے جانے والے پرانے شہر میں جہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے اور چار مینار و مکہ مسجد جیسی تاریخی عمارتیں واقع ہیں، خریداروں کا بے پناہ ہجوم امٹ پڑا ہے۔ اس بابرکت مہینے کی مناسبت سے پورے علاقے کو رنگ برنگی برقی خمخموں سے دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ رمضان کے دوران چار مینار دیکھنے آنے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ رات کے وقت برقی روشنیوں میں نہایا ہوا چار مینار کی تاریخی عمارت اتنا دلکش منظر پیش کرتی ہے کہ دیکھنے والوں کی نظریں اس پر ٹھہر جاتی ہیں۔ پرانے شہر کی سڑکیں رات بھر جاگتی ہیں، جہاں شہری اور سیاح لذیذ پکوانوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ خریداری میں مصروف نظر آتے ہیں۔
हजूम के पेश नज़र हैदराबाद पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। पुलिस दस्ते पूरे महीने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रात गए तक गश्त कर रहे। चूंकि पुराने शहर में चहल पहल सहरी तक जारी रहती है, इसलिए पुलिस हुकाम का कहना है कि उन्होंने ट्रैफिक की रवानी और अवाम की सहूलत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं ताकि लोग पुरअमन माहौल में इस मुक़द्दस महीने की खुशियाँ मना सके। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम के लिए एक बड़ी राहत की खबर। पिछले कुछ दिनों से सब्जियों की कीमतों में नुमायां कमी देखी जा रही, जिससे आम आदमी के माहाना बजट पर बोझ कम हुआ है। खासतौर पर टमाटर, गाजर और बीटरूट की कीमतें काफ़ी कम हो गई हैं। इसके अलावा 2 माह कबल तक जो टमाटर 30 से 40 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, अब वो सिर्फ 10 रुपए में दस्तयाब है। इसी तरह 100 रुपए किलो तक बिकने वाली गाजर और बीटरूट अब बाजारों में 20 रुपए से 30 रुपए के दरमियान मिल रही। रईतु बाजारों में यह कीमतें मजीद कम हैं। रईतु बाजारों में सब्जियों की ताज़ा कीमतें फी किलो इस तरह: टमाटर 10 रुपए, हरी मिर्च 60 रुपए, आलू 16 रुपए, प्याज 18 रुपए, गाजर 20 रुपए, बंद गोभी 12 रुपए, बीटरूट 15 रुपए, फूल गोभी 25 रुपए, भिंडी 28 रुपए, करेला 38 रुपए, तुरई 40 रुपए और ककड़ी 18 रुपए फी किलो दस्तयाब है। विजयवाड़ा में भी कीमतें कंट्रोल में हैं। वहाँ टमाटर 10 रुपए, बैगन 20 रुपए, भिंडी 24 रुपए और हरी मिर्च 44 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही। कद्दू की कीमत वहाँ सिर्फ 10 रुपए तक गिर गई है, जबकि आलू 23 रुपए और प्याज 22 रुपए में दस्तयाब है। तेलंगाना के बांसवाड़ा कामारेड्डी में फिरका वाराना वाकया, बेकसूर अक़लियती नौजवानों की फौरन रिहाई, मज़ीद गिरफ्तारियों पर रोक लगाने और मुतासर दुकान मालिकों को मुआवजे की अदायगी के ताल्लुक से मजलिसी डेलीगेशन ने तेलंगाना मिनॉरिटीज वेलफेयर मिनिस्टर और डीजीपी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मजलिस ने इस वाक़े में गिरफ्तार होने वाले मुस्लिम नौजवानों की जल्द रिहाई की मांग की और साथ ही जिन पर FIR दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लेने की डिमांड की। मजलिस ने यह भी जोर दिया कि फसाद के दौरान मुतासिर हुए दुकान के मालिकों को मुआवजा दिया जाए ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। मजलिसी डेलीगेशन ने तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश की है कि मजीद गिरफ्तारियों पर रोक लगाई जाए और फ्यूचर में ऐसे फिरका वाराना वाक़यात को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। असदुद्दीन अवीद साहब की हिदायत पर जाकर माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब असदुद्दीन साहब से मिलकर वहाँ पर उनको रिप्रेजेंटेशन दिया कि बांसवाड़े के अंदर जो एक फिरके वाराना जो माहौल पैदा कर एक छोटे व्यापारियों के दुकानों को लूटा गया, पुलिस के सामने ही आदमियों को मारा गया और जो लोग गड़बड़ करे उनको छोड़कर जिसके दुकान लूटे गए उनको उल्टा पुलिस अरेस्ट कर ली। और हम ये मुतालबा कर रहे हैं, हम जाकर माइनॉरिटी मिनिस्टर से और डीजीपी साहब के पास भी आकर, या डीजीपी साहब का मीटिंग में थे तो उन कलेक्टर महेश भगवत साहब से और कामारेड्डी इंचार्ज IG रेंज से मुलाकात करें और उनसे कहे कि भाई आप तो एक तो इनोसेंट लोगों को पकड़कर अंदर डाल दिए और छोटे व्यापारियों का सामान लूट लिया गया, उनके खिलाफ जो लूट मार करे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा मुतालबा ये था कि इमीडिएटली ये पुलिस जो है ना, जो 8 लोगों को जो अननेसेसरी अरेस्ट करके रखी वो 8 लोगों को रिलीज़ करें और मज़ीद कोई अरेस्ट ना करें, एन अदर्स के नाम पर FIR कर मज़ीद अरेस्ट ना करें। और पुलिस की मौजूदगी के अंदर पुलिस के सामने जो वहाँ पर जिस तरीके से गुंडागर्दी और मारा गया है, हम ये मुतालबा करते हैं कि जो लोग पुलिस के सामने ये करें उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सबको अरेस्ट किया जाए। और हमने हुकूमत से भी ये मुतालबा किया है माइनॉरिटी मिनिस्टर से कि जो लोगों के जो दुकानें लूटे गए हैं छोटे व्यापारियों के, रमज़ान के महीने में उन लोग कमाने के लिए बड़ी मुश्किलों से लेकर आके लगा लिए थे, जो उनकी लूटमार हुई है उसको कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए, ये भी हमने मुतालबा किया है। और वहाँ पर जो भी मजीद लोग अगर से किसी भी किस्म से गैर ज़रूरी के केसों के अंदर पुलिस अगर उनको फंसा रही है तो उनके लिए मजलिस की तरफ से हामिद लॉयर है जो उनकी पैरवी करेंगे और नुमाइंदगी करेंगे।
आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुमला लड्डू प्रसाद की तैयारी में मुबैना तौर पर मिलावट शुदा घी के इस्तेमाल के तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने एपी हुकूमत की एक रुकनी कमेटी को तहकीकात जारी रखने की इजाजत दे दी है। बीजेपी के सीनियर कायद सुब्रमण्यम स्वामी ने आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से एसआईटी की रिपोर्ट के बाद तहकीकात के लिए एक अलहदा एक रुकनी कमेटी की तश्कील को चैलेंज करते हुए दरख्वास्त दाखिल की थी। इस दरख्वास्त की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई एक रुकनी कमेटी अपनी तहकीकात जारी रख सकती है। स्वामी ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सुप्रीम कोर्ट की जब निगरानी में एसआईटी पहले ही तहकीकात मुकम्मल करके चार्जशीट दाखिल कर चुकी है तो ऐसी सूरत में रियासती हुकूमत का एक नई कमेटी बनाना गैर ज़रूरी और सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ा अहकामात के मनाफी है। इस दरख्वास्त में मरकजी और रियासती हुकूमतों के अलावा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू, एसआईटी, सीबीआई और टीटीडी को फरीक बनाया गया था। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता की ज़र सदारत दिल्ली हुकूमत की मुतल्लिक़ा अथॉरिटी ने राजधानी के 9 मेट्रो स्टेशनों के नाम तब्दील कर दिए। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक मीटिंग में 21 तजावीज़ पर गौर किया गया, जिनमें से 12 नामों को बरकरार रखा गया, 7 में तरमीम की गई और 2 स्टेशनों का मुकम्मल नाम तब्दील कर दिया गया। खबर रसा एजेंसी की रिपोर्टों के मुताबिक बदले गए नामों में शुमाली पीतमपुरा प्रशांत विहार साबिका प्रशांत विहार, जगतपुर वजीराबाद साबिका जगतपुर, नानक प्याओ डेरावल नगर साबिका डेरावल नगर, खानपुर वायु सेना आबाद साबिका खानपुर, नांगसर सोनिया विहार साबिका सोनिया विहार, श्री राम मंदिर मयूर विहार साबिका मयूर विहार, पाक वन मंगलू पूरी क्ला वेस्ट इंक्लेव साबिका वेस्ट इंक्लेव शामिल। इसके अलावा शुमाली पेतमपुरा का नाम बदलकर हैदरपुर विलेज और पेतमपुरा का नाम बदलकर मधुबन चौक किया गया। राजस्थान के इलेक्शन कमीशन की जानिब से 199 असेंबली सीटों के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के बाद हतमी वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। इस अमल की तकमील के बाद 31,36,286 राय दहिंदगान के नाम लिस्ट से हज़फ कर दिए गए हैं। ताहम 16 दिसंबर को जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के मुकाबले 10,48,000 राय दहिंदगान में इजाफा हुआ। ड्राफ्ट लिस्ट के दौरान 41,84,000 वोटरों के नाम हज़फ किए गए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद 12,91,000 नए वोटरों को शामिल किया गया, जबकि 2,42,000 नामों को हज़फ कर दिया गया। एसआईआर की हतमी वोटर लिस्ट के मुताबिक अब रियासत में कुल 5,15,19,929 वोटर हैं। दरियासना 27 अक्टूबर 2025 को एसआईआर शुरू होने से पहले राय दहिंदगान की कुल तादाद 5,56,56,515 थी। उत्तराखंड के कोटद्वार की रिहायशी मोहम्मद दीपक, असल नाम दीपक कुमार, ने नई दिल्ली में लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब कोटद्वार में दुकान के नाम के तनाज़े के बाद दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और मामला कौमी सतह पर ज़ेर बहस है। राहुल गांधी ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, हर इंसान एक सम्मान बराबर, यही है भारतीय, यही है मोहब्बत की दुकान। उन्होंने मजीद कहा कि उत्तराखंड के भाई मोहम्मद दीपक से मुलाकात हुई और इत्तेहाद और हौसले की ऐसी ही शमा हर हिंदुस्तानी नौजवान में रोशन होनी चाहिए। राहुल गांधी के इस पैगाम को सियासी हलकों में अहम करार दिया जा रहा, क्योंकि उन्होंने दीपक को यकजहती और जुर्रत की अलामत के तौर पर पेश किया। सुप्रीम कोर्ट को मेटा प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप की जानिब से दायर अपीलों पर समाअत कर रहा, जिनमें भारतीय मसाबकती कमीशन यानी सीसीआई की तरफ से आयद करदा 213.14 करोड़ रुपए के जुर्माने को चैलेंज किया गया। ये जुर्माना व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी से मुतल्लिक मुबैना खिलाफ वर्जियों के मामले में लगाया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में कायम बेंच, जिसमें जस्टिस जोवे मालिया बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल हैं, इस मामले की समाअत कर रहे हैं। इससे कबल अदालत ने दोनों कंपनियों पर सख्त तबसरे करते हुए कहा था कि डेटा शेयरिंग के नाम पर शहरियों के हक राजदारी से समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा था कि बड़ी डिजिटल कंपनियां इजारादारी की कैफियत पैदा कर रही और सार्फिन की निजी मालूमात के इस्तेमाल के हवाले से एहतियात लाजिम है।
अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। दोनों ममालिक के सरबराहान सख्त बयानात दे रहे और ऐसा महसूस हो रहा जैसे जंग कभी भी शुरू हो सकती है। अमेरिका ने तो बड़ी तादाद में जंगी तैयारों की तैनाती भी कर दी है, जिसने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी है। तशवीशनाक हालात के दरमियान हिंदुस्तान की वजारत खारिजा ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी हिंदुस्तानी शहरियों के लिए है। जारी करदा एडवाइजरी में हुकूमत हिंद ने अपने शहरियों को मशवरा दिया कि वो किसी भी तरीके से फौरन ईरान छोड़ दें। इससे कबल वजारत खारिजा ने एडवाइजरी जारी कर सभी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा दिया था, लेकिन अब हालात मजीद कशीदा होते नजर आ रहे हैं, इसलिए असल नो एडवाइजरी जारी की गई है। वजारत खारिजा ने एडवाइजरी में ईरान में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों से कहा कि वो इंतहाई एहतियात से काम ले, मुजाहरे वाली जगहों पर जाने से परहेज करे और हिंदुस्तानी सिफारत खाने के राब्ते में रहे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।